નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને લોકમંચ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું રાજનીતિની, કારણ કે જે પ્રમાણે રાજનીતિ જે દિશામાં જઈ રહી છે એ ચિંતાજનક બાબત છે. તમે જુઓ કે યુપી, પંજાબ સહિત 5 રાજ્યોની જે વિધાનસભાની ચૂંટણીની જે જાહેરાત થઈ છે અને ગુજરાતમાં પણ 2022માં અંતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. એટલે ચૂંટણી પ્રચાર થતો હોય છે ત્યારે એક મેનિફેસ્ટો હોય છે અને મેનિફેસ્ટોમાં વિવિધ પ્રશ્નોને, લોકોની સમસ્યાઓને, સ્થાનિક સમસ્યાઓને, બેરોજગારી દૂર કરીશું ને રોજગારી આપીશું ને ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલીશું ને વિદ્યાર્થીઓને, બધી જ વાત હોય છે, મહિલાઓ સુધીની વિકાસની વાતો પણ હોય છે. આ બધી જ વાતો થાય છે. પછી સવાલ એ છે કે શું આ જ મેનિફેસ્ટો પર અથવા આ જ વાતો પર ચૂંટણી લડાતી હોય છે, વિકાસની વાતો પર ચૂંટણી લડાતી હોય છે કે સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે? તો બિલકુલ બદલાઈ જાય છે, કારણ કે રાજનીતિ થાય છે પછી જ્ઞાતિવાદની. તમે જુઓ કે ઇવન મેન્ડેટ આપવાથી, એટલે કે જે ટિકિટ આપવાથી માંડીને શરૂઆત કરીએ ને તો ત્યાંથી જ રાજકારણની શરૂઆત થાય છે કે જે તે મત વિસ્તારમાં કઈ જ્ઞાતિનું પ્રભુત્વ છે. પછી કોઈ પણ રાજ્ય હોય, જ્ઞાતિવાદનું રાજકારણ જે હાવી થયું છે છેલ્લા કેટલાય સમયથી આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે જ્ઞાતિવાદને આધારે જ ચૂંટણીઓ લડાઈ રહી છે અને ખાસ જે ટિકિટ ફળવાય છે એમ જ્ઞાતિવાદનો સહારો જે રાજકીય પાર્ટીઓ લઈ રહી છે. એટલે અન્ય મુદ્દાઓ બહુ જ ગૌણ થઈ જતા હોય છે. સવાલ એ છે કે મુખ્ય મુદ્દાઓ, મુખ્ય સમસ્યાઓ એની કોઈ જ કહેવાય કે ચર્ચા જ થતી નથી અને પછી આખી ચૂંટણી, આખું ઇલેક્શન જ્ઞાતિવાદ પર લડાય છે. સૌથી મોટી લોકશાહી છે દુનિયાની, ભારતીય લોકશાહી કહેવાય છે. લોકશાહીમાં જે આ જ્ઞાતિવાદનું રાજકારણ છે કેટલું જોખમી છે. બીજું કે ક્યારે આપણને આમાંથી મુક્તિ મળશે, કારણ કે તમામ લોકો આમાં ક્યાંક સપડાયેલા છે અને પોલિટિક્સ ઓફ પરફોર્મન્સ આ જે છે એને પ્રાધાન્ય ક્યારે મળશે, આ મુદ્દે આજે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવી છે. અને ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે ગુજરાતના રાજકીય વિશ્લેષક એવા प्रशांत गढ़वी मारी साथ जोड़ा है. प्रशांत भाई, आपનું स्वागत है. और यूपी से हमारे साथ जुड़े राजकीय विश्लेषक संजय तिवारी जी जुड़े हैं. संजय जी, आपका भी स्वागत है. યસ પ્રશાંતજી, શરૂઆત આપનાથી કરીશ, કારણ કે ક્યાંક જે રાજનીતિ છે આ વખતની, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણે જોઈએ છીએ કે જે રાજનીતિ રમાઈ રહી છે, ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે ક્યાંક વિકાસની વાતો થાય છે, ક્યાંક સ્થાનિક પ્રશ્નોની વાત થાય છે, ક્યાંક બેરોજગારી, ખેતી, ખેડૂતો, મોંઘવારી, આ બધી ચર્ચાઓ થતી હોય છે. પણ મુખ્ય મુદ્દો એને ક્યાંક એનાથી ભટકીને આખી ચૂંટણી રાજનીતિ પર લડાતી હોય છે. શું લાગે છે કે મુખ્ય મુદ્દાથી ભટકીને આ જાતિવાદની જે રાજનીતિ રમાતી હોય છે એની પાછળનું કારણ શું? प्रशांत भाई, गुजराती समझ पाओगे कि मैं अपनी हिंदी में बोलूं? संजय भाई गुजराती समझेंगे आप या हिंदी में ही डिस्कस कर ले? समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, समझते हैं. हाँ जी जी प्रशांत जी. संजय भाई, गुजरात की पॉलिटिक्स को मैं बहुत करीब से जानता हूँ. यूपी, बिहार, जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ चर्चा जरूर करते हैं. और मेरे दिलीप भाई यहाँ मेरे साथ मेरे में सुर पुराएंगे कि गुजरात की सबसे ज्यादा डिबेट्स मैंने की हुई है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट. लेकिन ये बहुत हमारा कम नसीब है कि हमारे यहाँ का इलेक्शन न विकास पे लड़ा जाता है, न मुद्दों पे लड़ा जाता है. इलेक्शन जैसे वाजपेयी जी ने संसद में बोला था कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टी ओके, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. संजय जी. जी संजय जी, सवाल यह है कि जो यूपी, पंजाब सहित जो 5 स्टेट है वहां पे जो घोषित हुआ है चुनाव, और जो मतलब अभी मैनिफेस्टो में भी काफी सारे बातें हो रही है, क्या लगता है कि विकास के मुद्दों पर राजनीति हो रही है या जातिवाद, ज्ञातिवाद पे ही ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है? देखिए, राजनीतिक दल विकास की बातें तब तक करते हैं जब तक कि चुनाव नहीं आते. लेकिन चुनाव आते ही कई समीकरण काम करने लगते हैं. उसमें एक जातीय समीकरण एक ऐसा होता है कि हर सर्वे में, हर मैनिफेस्टो में, हर भाषण में, हर अंचल में ये काम करता है. ये अलग बात है कि इस बार जिस तरह की जातीय राजनीति करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सफल नहीं दिख रही. मैं तो ये कहूंगा कि जातीय राजनीति करने वाले जो नेता थे, जिन्होंने पिछले 3-4 टर्म से अलग अलग दलों में रह के अपना अलग अलग ढंग से अपना काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, तो उनकी जातियां स्वयं उनको अपना नेता मानने को इस समय तैयार नहीं है, जो जमीनी हकीकत है. ऊपर से वो भले बार्गेन कर रहे हो किसी बड़े दल को, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनके अपनी जाति में लोग ऐसे नहीं है जो जिसमें उनकी सर्व स्वीकार्यता हो.
एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ग्रहण किया था, उनकी सदस्यता ली जी। थी, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल ऐसा हो गया कि समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान जैसी स्थिति दिखने लगी। दूसरे दिन अखिलेश यादव जी को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी से अब कोई आएगा तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो जातियों के साथ ये समस्या है। एक ऐसे ही जातीय नेता यहाँ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू के 2 साल तक सरकार में थे, शामिल थे। 2017 के चुनाव में उन्होंने साथ दिया था। बाद में उनकी कुछ अपनी चीजें थी जिनको सरकार शायद पूरी नहीं कर पाई, वो सरकार से अलग हो गए। उसके बाद वो आजकल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब उनकी समस्या यह है कि उनकी जाति में जितनी सीटें अखिलेश यादव ने उनको दे रखी हैं, उतनी सीटों पर लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये जो छोटी जात मतलब छोटे दल हैं जो जाति के नाम पे बने हैं, इन दलों के पास प्रत्याशी नहीं है लड़ाने के लिए। ये बाहर से लोगों को लेते हैं। अब वो किस आधार पर लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो गणित अलग है, वो राजनीति अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इस समय माहौल दिख रहा है वो उसमें कहीं जाति बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। इसलिए भी नहीं दिख रही है कि प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है वो आपके गुजरात के हैं, लेकिन काशी से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लोग देख रहे हैं बनते हुए। तीसरा, मथुरा की बात हम कर चुके हैं, ये लोग अपने एजेंडे में भी रखे हुए हैं, भले वो एजेंडा गौण हो लेकिन लगातार लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो काशी, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या ऐसी जगहों का जहां उद्धार हो रहा है, ये यहाँ की जनता देख रही है। दूसरी बात, एक बात मैं बता दूं भाई साहब कि उत्तर प्रदेश बहुत ही राजनीतिक प्रदेश है। यहाँ का आदमी छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चाय की दुकान पे बहुत मजे लेकर चर्चा करता है। वो बताएगा कि वो बाइडेन आजकल क्यों परेशान है, वो बताएगा कि फ्रांस आजकल क्यों खराब स्थिति में है, वो बताएगा कि चीन से बहुत ऊपर हम आ गए हैं और अब तो वहां बहुत परेशानी आ गई है। तो जहां राजनीतिक चर्चाएं, चाय की चर्चाएं, जहां पर नुक्कड़ों की चर्चाएं बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होती हों, वहां आप अगर ये कल्पना कोई करता हो कि केवल उत्तर प्रदेश की बातों को लेकर के ये चुनाव हो रहा होगा, तो ये ठीक बात नहीं है। यहाँ की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और उस जमीनी हकीकत में एक बात महत्वपूर्ण ढंग से उभर कर आई है कि राष्ट्र प्रथम। तो जब राष्ट्र प्रथम की बात आएगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भारी होती दिखेगी। ये अलग बात है कि अभी कुछ बिखराव दिख रहा है, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें क्लियर हो गई, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे जो खासतौर पे 2 छोटे दल हैं, निषाद पार्टी एक है और एक जो है अपना दल, इन दोनों की सीटों का जो बंटवारा होना है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होना है या मध्य उत्तर प्रदेश में होना है। तो अभी वो बंटवारे की तस्वीर सामने नहीं आई है कि वो किन किन सीटों पे वो जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस रूप में उनको लेने जा रही है। संख्या केवल एक निर्धारित है कि 10 सीट उनको, 12 सीट उनको। लेकिन अभी जब पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ से पूरब और बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, उसका जो समीकरण आएगा सामने, जब चुनावी परिदृश्य उसका सामने आएगा, प्रत्याशियों के चेहरे सामने आएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, क्योंकि ये क्षेत्र ही सरकार बनाता और बिगाड़ता। इसको कह सकते हैं आप कि काशी से जुड़ा हुआ जो 300 किलोमीटर उत्तर, 300 किलोमीटर दक्षिण, 300 किलोमीटर पश्चिम और 100 किलोमीटर पूरब बिहार की तरफ, तो ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नहीं। सवाल संजय जी सवाल यह है कि दिल्ली अगर जाना हो तो वो रास्ता यूपी से निकलकर दिल्ली गद्दी तक पहुंचता है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यूपी में भारतीय जनता पार्टी भले ही मजबूत दिख रही है, पर वो सहारा तो कुछ जातिवाद, ज्ञातिवाद, धर्मवाद का ले रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इस चीज को मैं भी महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सहारा लेने की जरूरत थी नहीं। अब ये किस आधार पर ये सहारा ले रहे हैं, या तो 2017 वाले परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं, तो ठीक है आपके पास उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, बहुत दिनों से, लगभग 30 वर्षों से सरकार नहीं थी, आप सरकार से बाहर थे, उस समय सबको जोड़ना जरूरी था। लेकिन आज की तारीख में जबकि आप केंद्र में 7 वर्षों से शासन में हैं, एक मजबूत नेतृत्व के साथ शासन में हैं और 5 वर्ष आपने उत्तर प्रदेश में सरकार चला लिया,
वो आरोप प्रत्यारोप और जातिगत समीकरणों की बात छोड़ दीजिए। 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों बाद सरकार चलाई, तो 5 साल की ये सफलता आपकी, 7 वर्ष की केंद्र की सफलता, फिर आपके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व है जो एक दिन एक बार टेलीविजन पर आएंगे और कुछ ऐसा कहते हैं जिससे देश की जनता उनसे जुड़ जाती है। अभी वो बाकी है, अभी वो हुआ भी नहीं है, अभी 1 फरवरी को बजट आना बाकी है देश का। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों से बार्गेन क्यों हो रही है, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ की राजनीति को जानते हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि छोटे दलों से अब बार्गेन करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और दूसरा जो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी, अब ये कहने की बात है कि संघ राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन संघ एक ऐसा संगठन तो है जो वैचारिक व्यक्तित्व पैदा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जरूरत है कि हमको राजभर समाज में नेता चाहिए, हमको निषाद समाज में नेता चाहिए, हमको मौर्य समाज में नेता चाहिए, हमको अपना दल वाले लोगों के वाले जाति समाज में नेता चाहिए, तो 5 वर्ष का समय आपको मिला था, आप अपना नेता बनाए होते, अपना नेता पैदा कर लिए होते, आपका वैचारिक धरातल पे वो मजबूत रहता, फिर दल बदल का खतरा नहीं होता, वो आपसे बाहर भी नहीं जाता। तो कुछ गलतियां हैं जो हुई हैं और इसका मूल्यांकन इन लोगों को करना होगा, कर भी रहे होंगे, वो हम लोगों से ज्यादा। चलो हमारे साथ प्रशांत जी है, प्रशांत जी से भी पूछेंगे। प्रशांत जी, जो बोला कि छोटे छोटे अगर दल है वो भी जाति के बल पर अगर अस्तित्व में आते हैं, और यूपी की अगर बात करते तो महंगाई, रोजगार, विकास, ये जो समस्या है उनकी सिर्फ चर्चा होती है, पर राजनीति होती है सिर्फ ये ज्ञातिवाद पर, जातिवाद पर। प्रशांत जी, मेरी पहली जो बात अधूरी रहेगी, उसमें एक ही चीज, मुख्य चीज की इलेक्शन आते हैं जाते हैं, मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अभी संजय भाई की जो बात जो अधूरी रही, मैं उसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ कि आपने बहुत ठीक बोला कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, पर वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए मारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक जुनून चढ़ा हुआ है कि विपक्ष को खत्म कर दो, हम जहां बैठे वहां हमारी ही सरकार ऐसे ही बैठनी चाहिए कि विपक्ष नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम लोगों को हमारे साथ जोड़ दो। तो जो छोटे छोटे लोगों को भी जोड़ता है, फिर वो उनके लिए एक प्रेशर बन जाता है, वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने आपको मेरे में जोड़ा तो आपके साथ मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप आते हो किसी समुदाय से आते हो, आप पार्टी से नहीं आते हो, आपकी जो पार्टी है वो कहीं छोटी पद की पार्टी है जिसकी भूख बहुत बड़ी नहीं है, बट फिर आपकी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसलिए फिर जाति पिक्चर में आ जाती है। तो क्योंकि कोई भी पार्टी, प्रशांत जी, कोई भी दल, कोई भी पार्टी कोई ज्ञाति से, जाति से अभी जुड़ी हुई है और उसके बल पर खड़ी हुई है, भले उसके पास, जैसे संजय जी ने बताया वैसे, कि प्रत्याशी नहीं है, फिर भी बाहर से लाएंगे। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, कोई भी पार्टी विचारधारा से बनती है, कांग्रेस और प्रशांत जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। सो जितनी भी रीजनल पार्टी जो जाति के दर्जे बनी, वो देख लो आप, जो पार्टी बनी है वो बड़ी पार्टी के साथ जुड़ी है, तो अपनी जाति का, प्रशांत जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रशांत जी, आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम। जी संजय जी, मैं प्रशांत जी से अभी बात करूंगा। उससे पहले जो मतलब मैंने बताया कि अगर महंगाई की बात है, रोजगार की बात है, विकास की बात है, ये सारी बातें साइड में रह जाती है और आ जाती है जातिवाद की, ज्ञातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति, और लोग भी मच पड़ते हैं उसके पीछे, और लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये जातिवादी की राजनीति, वो भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाता है एक तरह से। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये कुछ दुर्भाग्य हम लोगों का ऐसा है कि जब से भारत स्वाधीन हुआ है उस समय से ही सारी चीजें उसी रूप में चल रही हैं। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम लोग, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम एक अपना लागू किया था, और हम लोग छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो हर कॉपी के पीछे के पन्ने पर 20 सूत्रीय, प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक विकास के कार्यक्रम छपे होते थे।
वो 20 सूत्रीय आर्थिक विकास के कार्यक्रम उनके तब तक चले हैं जब तक अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इसका मतलब कि जी। कहीं काम नहीं हुआ, और जब काम नहीं हुआ सारी चीजें वहीं रह गईं। जब चुनाव आया तो विकास पीछे रह गया, जब चुनाव आया तो आर्थिक विकास पीछे रह गया, जब चुनाव आया तो जुड़ा क्या, जाति का विकास जुड़ा, या कोई कुछ ऐसी चीजें जुड़ी, जाति समीकरण, जिसके चलते आपकी सरकार बन गई। सरकार बनाने के बाद आप फिर वही आर्थिक विकास लेके चल रहे हैं। अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 7 वर्षों में। मतलब इन चीजों को मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन हुआ है, और देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और हम ये महसूस कर रहे हैं, चूंकि हम लोग गांवों से भी जुड़े हुए लोग हैं, गांव भी आना जाना होता है। तो जिस गांव में पहले आप जाते थे और शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा छा जाता था, अब उन गांवों में 11 बजे तक टेलीविजन चल रहा है। अब उन गांवों में हर घर में बिजली जल रही है। उन पर गांव में तिवारी जी, मुद्दा ये नहीं बनता है ना, आखिर में मुद्दा ये नहीं बनता कि हमने विकास किया है या गांव में बिजली पहुंचाई या नहीं, खेतों तक मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। इस बार राजनीतिक दल तो जातीय मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जो वोटर है वो वोटर अपने मूल मुद्दे पर आ गया है। यस प्रशांत जी, आपकी बात अधूरी थी, प्रशांत जी से भी सुन लीजिए। हाँ प्रशांत। तो ये जाति आधारित जो हो गया, देखिए इस बार यूपी में बीजेपी के पास अच्छे मुद्दे हैं। अब पहले का यूपी देख लो, 2017 के पहले का यूपी और आज का यूपी क्या है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर विकास दिखता है, लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, एनकाउंटर वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आई। और आपने ठीक बोला, 5 बजे बाद अंधेरा था, 8 बजे बाद लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा पिक्चर बदल गया है। तो ये सब पॉजिटिव वेव्स है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाति, अब 2017 में की ही बात कर लो तो बीजेपी के पास 403 प्रत्याशी थे ही नहीं। वो कहीं ना कहीं लोगों से उठा के लाए थे, कोई कांग्रेस से आया था, कोई सपा से आया था, कोई बसपा से आया था, उनको ही लड़ाया। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के नाम पे, विकास के नाम पे, 2014 के नाम पे वो जीत के आए, फिर वो बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी के बने रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बातें हैं, वो ले जानी है लोगों के बीच में। देखो बीजेपी के पास राजनीति के लिए सिर्फ 2 मुद्दे हैं, एक नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा धार्मिक मुद्दा। अयोध्या की बात कर ली, 370 की बात कर ली, काशी मथुरा की बात कर ली, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की हम बात करें, वो एयरपोर्ट की बात करें, ये सब एक मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में ले जाना है। लेकिन वो सबसे परे अब कहीं और अभी बात क्या हो रही है, तो सामने वालों का एनकाउंटर करना, सामने वालों के ऊपर, मतलब ये ईडी वाली बात आप देख लो, ईडी सीबीआई की जब रेड हो रही है, इत्र का विचित्र चरित्र चल रहा है, 1 महीना चला, आपने भी देखा कहीं ना कहीं। तो कहीं ये विकास की राजनीति की बात नहीं है। अभी जो बात हो रही है ओनली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो ये जो जातियों का भड़काना, 80 बनाम 20, देखिए योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दे दिया, मैं यहाँ बीजेपी की अनफेवर करने नहीं आया हूँ, बट हम तो न्यूट्रल वे से जो देखेंगे कि सपा क्या बोल रहा है, बसपा क्या, अभी बसपा की साइलेंस ही है, तो कहीं ना कहीं उनको साथ में बिठाने का प्लान होगा, जो भी होगा इन फ्यूचर का। तो सपा क्या बोल रही है, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, तो 80 बनाम 20 तो क्या हुआ, भड़का दिया ना। 20 कौन है, तो सामने भी प्रशांत जी, सामने भी तो आई फॉर्मूला 85-15 की एक फॉर्मूला, वो भी तो आई 85-15 की आई इवन। और वो सबसे परे, ये प्रियंका गांधी ने कुछ और ही बता दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसने हथियार बना दिया महिलाओं को। आज की तारीख में उन्होंने प्रशांत जी, कौन जिम्मेदार, प्रशांत जी सवाल ये होता है कि धर्म जातिवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, राजनीति में कौन जिम्मेदार लगता है आपको? बदलती हुई राजनीति की व्याख्या, डेफिनेशन, वो जिम्मेदार है। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए जो जुनून जंग सबको चढ़ा हुआ है, वो जिम्मेदार है इसके पीछे, क्योंकि वही जाति का बंटवारा करते हैं। ये क्यों आया 80 बनाम 20 क्यों आया, और वो MY मुस्लिम यादव हो या मोदी योगी हो या महिला यूथ हो, MY की डेफिनेशन डिफाइन करने वाले आप और हम, मतलब ये राजनीतिक दल कौन होते हैं, वो जनता को नक्की करने दो। MY क्या होता है, MY फैक्टर कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर ये अली वर्सेस बजरंग बली, औरंगजेब को आप लेके आए पिक्चर में, उसके और सामने वो गदा लेके खड़े रह जाते स्टेज पे, फारस भी लेके आ गए, परशुराम की फारस लेके आ गए। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखावा हो गया धर्म के नाम का। और पूरा यूपी का इलेक्शन पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे कंसंट्रेट किया जाता है, वरना बीजेपी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे। साहब आज की तारीख में आप बताइए, पूरे देश में एक ही यूपी ऐसा है जहां पर प्लेन रोड पे उतरा है। आप बताइए पूरे देश में कहीं प्लेन रोड पे नहीं उतरा है, तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। पहले उतारा होगा मुलायम चलो सिंह फिर यादव, भी आज उतरा संजय जी,
संजय जी, इतनी सारी बातें प्रशांत जी ने बताई, विकास हुआ है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लॉ एंड ऑर्डर में यूपी में काफी एक बदलाव देखने को मिला है। फिर भी अमित शाह जी जैसे चुनाव घोषित होने के बाद जब प्रचार में निकलते हैं तो कैराना चले जाते हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां जो पलायनवाद का मुद्दा है वो बहुत मतलब 2017 में भी बहुत उगला हुआ था। वहां से क्यों ये शुरुआत की और पर्चे भी बांटे, प्रचार भी किया? अब्बा जान वाली बात भी आ गई। देखिए, इसको हाँ। थोड़ा सा और हम लोगों को गंभीर हो जाना पड़ेगा। कैराना में गृह मंत्री की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। कैराना वो क्षेत्र है और कैराना के आसपास का वो क्षेत्र है जहां मंचों से 2017 के चुनाव में भाषण दिए जाते थे कि यदि भाजपा नहीं हारेगी तो देश का मुसलमान भारत में नहीं रह पाएगा, और उन भाषणों को यहाँ के चुनाव में नहीं इस्तेमाल किया जाता था। उन भाषणों की सीडी और उनका सारा लिंक पाकिस्तान को दिया जाता था। उस समय मुझे खूब ठीक से याद है कि मायावती जी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार रखे थे और वो चुनौती देकर भाषण देती थी। उसके बाद से लगातार स्थितियां बिगड़ी, क्योंकि उसके पहले वहां मुजफ्फरनगर कांड हो चुका है। कैराना आप जाएंगे तो कैराना में आप पाएंगे कि आप भारत में ही रहते हैं या भारत के बाहर किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, आप अंतर नहीं लगा पाए। अच्छा। और ऐसे ढेर सारे पॉकेट्स उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, केवल कैराना की बात में नहीं कर रहा हूं। वो स्थितियां तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कुछ जगहों पे भी हैं। जैसे आप कुशीनगर जिले में चले जाएंगे, अब सोचिए कि कुशीनगर में बुद्ध का सबसे बड़ा जगह, वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया मोदी जी ने। हालांकि वो हवाई अड्डा कांग्रेस के समय का स्वीकृत था लेकिन बन नहीं पाया था, मोदी जी ने दिया। लेकिन उसी जगह पे वहां से 17-18 किलोमीटर आप दूर जाएंगे तो गांव में आपको ऐसे झंडे दिखेंगे जैसे लगेगा कि आप पाकिस्तान में आ गए, आप भारत में हैं ही नहीं। तो जहां जहां ये स्थितियां हैं, जब राजनीति होगी तो राजनीति में ये चीजें आना स्वाभाविक है। गृह मंत्री अगर कैराना नहीं गए होते, अगर वो सहारनपुर साइड में नहीं जाएंगे, अगर वो देवबंद साइड में नहीं जाएंगे, अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को कायदे से ये एहसास नहीं कराएंगे कि आप सुरक्षित हैं, तो हिंदू वोट पोलराइज होके भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अच्छा, इन शॉर्ट धर्म की राजनीति हुई, संप्रदाय की राजनीति हुई, जी 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 हो रही है जी, एकदम सही है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि इन चीजों को आप रोक नहीं पाएंगे। देखिए, अभी क्या है कि हम लोग चर्चा में बाकी चीजें तो देखते हैं, चीजें रिएक्शन जिनकी आते हैं, जातियों के रिएक्शन आते हैं, वो हम देख लेते हैं। लेकिन आप पूरे चुनाव में देख रहे होंगे कि मुस्लिम पक्ष से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आ रहा है। वो बड़े शांत भाव से, वो बहुत शांत भाव से इस चुनाव को देख रहे हैं, बहुत शांत भाव से वो देख रहे हैं। एक दिन के लिए केवल थोड़ी सी छूट मिली या थोड़ा सा जिस दिन लगा कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, वो अयोध्या प्रजापति आ गए, या इस तरह के लोग आ गए, तो उत्तर प्रदेश का जो माहौल 1-2 दिन बना रहा, उसने लोगों को डरा दिया, बिल्कुल डरा दिया। ओके संजय जी समय बहुत कम है और मैं प्रशांत जी से आखिरी बात सुन लूं। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, कब मुक्ति मिलेगी ये जातिवाद ज्ञातिवाद से, और क्या कहेंगे शॉर्ट में? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब जैसे भ्रष्टाचार हमारे इंडियन के डीएनए में घुस गया है, वैसे जाति का राजनीति हमारे एक कैंसर की तरह हमारी भारत की बॉडी में घुस चुका है। वो यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते। आप कहीं भी देख लो, तो वेस्ट बंगाल में ममता जीतती है, वो भी जाति आधारित गणित है। तो ये यहाँ से बाहर निकलना मतलब कैंसर को निकालना। जिस दिन कैंसर का रोग नाबूद हो जाएगा पूरे देश में से, उस दिन ये जाति आधारित राजनीति खत्म हो जाएगी। वरना ऐसे माहौल में हमारे गुजरात में आप देखिए ना, यूपी का मैं जब सुन रहा हूँ संजय भाई से, तो मैं कन्विंस हो जाता हूँ कि भी कहीं ना कहीं 80 बनाम 20 वाला माहौल रहता होगा, वो भड़काऊ माहौल रहता होगा। गुजरात में कुछ भी नहीं है, बट भी हमारे यहाँ ठाकुर को यहाँ देना है, पाटीदार को यहाँ देना है, यहाँ पर ठाकुर इसको ही वो टिकट देना पड़ेगा, यहाँ पर आहिर को देना पड़ेगा।
यहाँ इसको બિલકુલ એટલે પ્રશાંતજી, રાજકીય પાર્ટીઓ પણ ક્યાંક મજબૂર થઈ જાય છે અને શરણે થઈ જાય છે આ જ્ઞાતિવાદ ને જાતિવાદને કારણે. પરંતુ એક વસ્તુ એ છે કે આટલી મોટી લોકશાહી વાળો દેશ છે અને જો જ્ઞાતિવાદ ને જાતિવાદ ચાલ્યો ને જેમ પ્રશાંતજીએ કહ્યું એમ કે કેન્સરની જેમ તમારે એને જ્યારે કેન્સર ખતમ થશે ત્યારે થશે ને લોકોના ડીએનએ માં ઘૂસી ગયું છે. એટલે લોકો પણ ક્યાંક જવાબદાર છે. લોકો પણ પોતાની જાતિને, પોતાની જ્ઞાતિને, પોતાના ધર્મને, પોતાના સમાજને જ્યાં સુધી પ્રોત્સાહન આપશે ત્યાં સુધી આ જ્ઞાતિ જાતિનું સમીકરણ ચોક્કસ રાજનીતિમાં જોવા મળશે. અને રાજકીય પાર્ટીઓનું જનૂન એટલા હદે છે કે એ લોકો પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં શામદામ દંડ ભેદ છે એમ જાતિવાદી, જ્ઞાતિવાદી કે ધર્મ સંપ્રદાય કંઈ પણ આવે પણ ચૂંટણી જીતવી છે. જ્યાં સુધી એમનો મુદ્દો પણ જો આ રહેશે તો આમાંથી મુક્તિ મળવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. પણ આવનારા દિવસો માટે તંદુરસ્ત લોકશાહી માટે એક આ ખતરાની નિશાની પણ કહી શકાય. અપેક્ષા રાખીએ કે બહુ ઝડપથી આમાંથી આપણને મુક્તિ મળે, પણ એના માટે રાજનીતિ પાર્ટીઓ કરતા લોકોએ ક્યાંક આગળ આવવાની જરૂર છે. ચर्चा समापन करे थे. चर्चा में भाग लेने के लिए संजय तिवारी जी और प्रशांत गढ़वी दोनों उपस्थित रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આજની ચર્ચા. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, નવા મુદ્દા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.